We are just here just to listen and to get the blessings of Honorable Union Minister for Human Resource Development. But still, as a customary, as a founder of Kit and Kiss, it's my great pleasure and duty to extend the heartiest welcome to Honorable Union Minister with a few words about him. So my lovable Kishan, though we know our Honorable Union Minister for Human Resource Development needs no introduction, but you all will be happy to know that from a firebrand youth leader to become the Union Minister of Human Resource Development, he has come a long way. Being elected to Rajya Sabha as a Member of Parliament from Maharashtra in 2008 and re-elected from Madhya Pradesh in 2014 speak about his popularity across the nation. Honorable Prime Minister, respected Sri Narendra Modi ji, has also enough confidence on Javadekar ji, for which after the 2014 victory, he was appointed as the Minister of State, Independent Charge for Environment, Forest and Climate Change. He also holds the charge of the Minister of State for Parliament Affairs and briefly held the portfolio of Information and Broadcasting. Because of his eloquence and understanding of the strategy of the party, he became an official spokesperson of the BJP also. Active in politics since his college days, Javadekar ji was a member of ABVP, the Students' Union. During the emergency declared in 75-77, Javadekar ji stood as a fierce student leader to challenge the mighty dictatorial emergency. The list of his achievements and responsibility can run into pages, and in each of his positions he contributed a lot. In 95, when Sri Javadekar ji was elected to the Maharashtra Legislative Council, he also occupied the position of the Executive President of the State Planning Board and then Chairman of the Task Force on IT in the Government of Maharashtra. As a Minister of HRD, the most important reform he has undertaken is to conduct a common admission process for National Institute via the Joint Seat Allocation Authority. Whether he remained a student leader or a Rajya Sabha member or a minister or even the member of different standing committee, public accounts committee, Javadekar ji always wanted to bring some reforms in the system, and that makes him different from the others. I have no words to describe the huge achievements of Honorable Union Minister ji, starting from Sir Purushottam Das Thakur Memorial National Award for research papers on rural development and bank's role in coordinated approach to attending global conference in Japan, Israel, Belgium, Taiwan, Finland, USA, South Africa, Italy, and many other countries. Javadekar ji has been leaving his stamp everywhere. So we are really indeed grateful to the Honorable Union Minister for Human Resource Development. हम सबके लिए आज बहुत खुशी का दिन है, गौरव का दिन है। कितना दिन हो गया हम लोग आशा व्यक्त कर रहे थे माननीय मानव संसाधन मंत्री जी किस को आए, अपना आँखों से 25,000 आदिवासी बच्चों को देखे एंड अपना आशीर्वाद दे के जाए। आज आपको यहाँ देख करके हम लोग मन में नहीं, हम लोग का आत्मा भी तृप्त हो गया है जे माननीय मंत्री जी यहाँ पधारे हैं। हम लोग को पता है माननीय प्रधानमंत्री जी जो सपना देख के कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। जब तक ये बच्चे लोग का विकास शिक्षा माध्यम से नहीं होगा तब देश का विकास सोचना असंभव है। जितना भी माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, महिला सशक्तिकरण से लेके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
तो मैं आशा व्यक्त करूंगा माननीय मंत्री जी देखेंगे यहाँ सब कुछ सफल हुआ है कि इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्तिकरण बोलिए, सबका विकास सबका साथ बोलिए, ये सब कुछ इतना सुंदर से यहाँ 25 साल हो गया चल रहा है, जो आंखों में नहीं देखेंगे विश्वास कर नहीं पाएंगे। सो इट्स आवर ग्रेट प्लेजर on behalf of the center 25,000 children present at KIS, on behalf of the staff, students, management of both KIT and KIS, on my behalf I welcome you sir. We are really grateful and we are really honored because of your kind presence to grace this occasion. In spite of your so much busy schedule, आप कुछ समय निकल पाए हम लोग के लिए, इसलिए हम लोग आपका आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यही है न्यू इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का सपना देखते हैं और नया भारत जिसमें दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी सीखकर अपने पैरों पर खड़े रहे और ऊंचे सिर से कहेंगे भारत माता की। ये नया भारत है, उभरता हुआ भारत, खिलता हुआ भारत, एस्पायरिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, अवेकनिंग इंडिया। दिस इज न्यू इंडिया और यही देश को आगे ऊंचाई पर ले जाएगा। अभी मैंने आपका चित्र देखा। जिन छात्रों ने ये चित्र तैयार किया जरा हाथ ऊपर करो। पेंटिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे बचपन में पेंटिंग नहीं आता था, तो मैं भाषण करता था, मैं बात करता था, लेकिन हर एक को सब कुछ नहीं आता। जिंदगी में यह भी समझना जरूरी है कि हमें क्या नहीं आता, क्योंकि यह भी एक सीख है। क्या नहीं आता, तो मुझे ड्राइंग नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, अब एक मुर्गी निकालने का पेपर में आ गया कि मुर्गी निकालो। अब मुझे मुर्गी निकालना बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ, मैं देहात में रहता था, तो वो मुर्गी को ऐसा पकड़ के उस पर क्या डालते थे, क्या डालते ऊपर, मुर्गी के ऊपर टोकरी डालते हैं। तो मुझे टोकरी का चित्र आता था। मैंने टोकरी निकाली और लिखा कि टोकरी में मुर्गी है। लेकिन मेरे सर वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने लिखा आपके मार्क भी टोकरी में है। मेरी माँ टीचर थी, जिला परिषद स्कूल में मैं पढ़ा, देहात में पढ़ा, घर में चूल्हा जलता था और मेरी माँ टीचर थी और अभी 92 इयर्स की है। आज भी वो रोज 10 घंटे पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है। मैं उसी का विद्यार्थी हूं। और मैं चौथी में था, मेरा पेपर उसी के पास आया असेसमेंट के लिए, तो मुझे दिखाया नहीं कि मुझे कितने मार्क दिए, नहीं दिखाया। फिर मुझे क्लास में पेपर मिला तो उसमें 2 मार्क मुझे कम मिले थे, जितना मुझे मिलना चाहिए था उससे 2 मार्क कम मिले थे। तो मैंने क्या किया, मैं जाके माँ से झगड़ा किया घर में आकर कि क्यों आपने मुझे 2 मार्क कम दिए। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे बेटे हो, मैं सब क्लास का पेपर एसेस कर रही हूं, कोई ये ना कहे कि आप शिक्षक हो और इसलिए अपने बेटे को ज्यादा मार्क दिया, ऐसा कोई ना कहे, इसलिए मैंने आपको 2 मार्क कम दिए। बच्चों, यही सीखना है, यही संस्कार है।
यही संस्कार है, यही चरित्र निर्माण है, और इसी से हम अच्छे बनते हैं। जिंदगी में सपने इतने होते हैं। मैं सभी नेताओं के भाषण होते थे, सभी पार्टियों के, मैं चौथी से ही सबके भाषण सुनने जाता था। मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि क्योंकि मैं हमारे यहाँ ऐसे छोटी छोटी झुग्गी डाल के दूर दूर से मजदूर आते थे और वो खेत में छोटी झुग्गी डालते थे और उसमें रहते थे। शाम को मैं देखता था, खेल हम समाप्त करके आते थे तो वहां वो शराब पी के पत्नी को पीट रहे, बच्चों को पीट रहे थे। मुझे रोना आता था कि इनकी स्थिति कैसे सुधरे। मुझे लगता है सामंता इसीलिए मेरा भाई है कि अभी अच्युता इज माय ब्रदर बिकॉज ही ऑल्सो टेक्स दिस कंपैशन। देखो, जिंदगी में सफल बनने के लिए इनोवेशन इन माइंड, यहां अध्यापक भी है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप जो कुछ भी है वो आज सामंता का नियोजन और अध्यापकों का शिक्षण, इसके कारण आप अच्छे हो गए हो, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैं पुणे में गया, जहां मैंने कॉलेज की पढ़ाई की, और मेरे कॉलेज के सभी शिक्षक जो आज जीवित है सबको बुलाया और मैंने मेरा स्वागत समारोह नहीं किया, मैंने गुरुजनों को प्रणाम करके, गुरु प्रणाम करके मेरा काम शुरू किया। यही भावना होनी चाहिए। मैंने संसद में भी ढूंढा कि कितने प्राध्यापक है, अध्यापक है, शिक्षक है, और संसद के बारे में ऐसी खबरें आती है कि लगता है सब चोर लुचक्के, डकैती, मारामारी करने वाले ऐसे ही लोग हैं क्या? नहीं है। ये देश अच्छे लोगों से बना है। और मैंने देखा 60 से ज्यादा प्रोफेसर्स, टीचर्स हमारे संसद है, सभी पार्टियों में है, और ये सांसद, उनका मैंने गुरु पूर्णिमा पर स्वागत किया। यह हमारी संस्कृति है। हम अच्छा काम करेंगे और हर एक के मन में जबरदस्त विश्वास होना चाहिए। आदिवासी, मैं काम करता था, रोज आदिवासियों के घरों में खाता भी था और उनके साथ रहता था महाराष्ट्र में। तब मैंने देखा है आदिवासी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आज लेकिन ये स्कूल ने जो बदलाव किया है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ने, मैं देख रहा हूं सबके चेहरों पर जबरदस्त विश्वास है, हम बनेंगे। हमारे फैमिली का भविष्य बदलेंगे, हमारे गांव की तकदीर बदलेंगे और हमारे देश को आगे ले जाएंगे। यह जज्बा मैं आप में देख रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, शिक्षा ही है, शिक्षा ही एक औजार है कि जो एकदम गरीब आदमी को भी, एक जमींदार है, पहले से संपन्न है, साधन है, उसके खेत में खेतिहर मजदूर है, उनकी झुग्गी है, उसमें बच्चा पढ़ रहा है, उसको अवसर मिलना जरूरी होता है। मैं हर साल ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ न कुछ जो मुझसे संभव है मदद करता हूं। एक खेतिहर मजदूर जिसके पिताजी नहीं थे, बचपन में गुजर गए, उसकी मां खेती में काम करती, वो अच्छे जज्बे से, आप जैसे, वो 12वीं में अच्छे मार्क लेकर उसको मेडिकल में एडमिशन मिला। तो सरकार तो हॉस्टल देती है, फी देती है, फी नहीं लेती, शिक्षा मुफ्त है, पुस्तक भी उसको मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खर्चा है। तो खर्चा कैसे करें?
तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़े पैसे देता हूं कि साल भर उनके काम में आएंगे। तो ऐसा मैंने दिया, वो आज बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया है। लेकिन एक उदाहरण बताने जैसा है, मेरा बेटे भी उस समय स्कूल में थे, कॉलेज में ही थे, तो उनको वो उनके साथ आते थे जाते थे। तो एक दिन गए आइसक्रीम के दुकान में और मेरे बेटे ने कहा कि चलो आइसक्रीम खाते। उस छात्र ने कहा, तो हमारे बेटे ने पूछा आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, क्योंकि अभी आइसक्रीम में बहुत फ्लेवर होते हैं। तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं क्या फ्लेवर होता है, क्योंकि मैंने आज तक आइसक्रीम खाया ही नहीं है। यह समाज की सच्चाई है। उस गरीब को न्याय मिलने तक मोदी सरकार काम करते रहेगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन वो आज बड़ा डॉक्टर बन गया, आज अनेक छात्रों को ऐसी मदद करता है जिससे उनका भी हुनर आता है, और इसलिए ये काम करना चाहिए। संस्कार क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक कहानी, और फिर मैं आपसे रूबरू भी होऊंगा। मैं योजना आयोग का अध्यक्ष बना महाराष्ट्र में, मैं विधायक था। तो हमें लाल दिवे की गाड़ी आई, मेरे बच्चे स्कूल में थे, हमारे घर में मारुति 800 थी। तो जैसे लाल दिवे की गाड़ी आई तो किसी को भी अच्छा लगता है, अच्छा है बोले, जोर है आपका। तो बच्चों ने कहा चलो हमें लॉन्ग ड्राइव करो। तो हम गए और एक दूर की सैर करके आए। तो सब जगह रास्ते में पुलिस खड़े धड़ाधड़ सैल्यूट दे रहे, बच्चों को अच्छा लगा। बच्चों ने कहा कि ये तो अच्छा है। तो मैंने घर आके लाल दिवे के गाड़ी से हम उतरे और मेरे मारुति 800 में हम बैठे, और उसी सड़क से मैं गया लेके उनको, और तब कोई सलाम नहीं कर रहा था। तो मैंने बच्चों को कहा कि ये सलाम वो लाल दिवे को था। जब लोग प्यार से अपने को नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, वो अपना काम है, वही करना चाहिए, ये मैंने बताया। और मुझे पूरा यकीन है कि आप यहाँ अच्छा पढ़ाई हो, आपके नसीब में भी अच्छा है कि एक कलिंगा इंस्टीट्यूट जैसा इंस्टीट्यूट आया, यहाँ रहते हो, यहाँ खाते हो, यहाँ पढ़ाई करते हो, यहाँ सपने देखते हो और आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हो। यही तो जिंदगी है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाना, यही जिंदगी है। और इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिंदगी में सफल बनोगे, देश को ऊंचा बनाओगे, और देश, नया भारत उभरेगा, और एक जबरदस्त देश दुनिया देखेगी। अरे देश कैसा हो, भारत जैसा हो, ये लोग कहेंगे। ये मुझे आज भरोसा हो गया, आपको देखकर बहुत बहुत आनंद आया। अच्छा, इसमें टीचर कौन बनना चाहता है? टीचर, टीचर क्यों बनना है आपको? बच्चों को पढ़ने चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। क्या पढ़ाओगी? इंग्लिश। इंग्लिश, वेरी गुड, जोर से तालियां।